Hello to class 9 students. Class 9 today we are going to finish our lesson number 2 in commercial studies, and after this we are going to start with economic applications lesson number 1. So in the next video is going to be your economic applications, and I hope you people are doing your work, and I want you people to complete your notes up to lesson number 2 in your fair notebooks. So today we are going to complete our last topic, and it is the distinction between organization, firm and company. And this is the last topic of your lesson number 2. Right? So we are going to read about organization. What is an organization and what is the difference between a firm, a, a organization, a firm and a company. So let's read about first an organization. ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप which deliberately come together and they have a common objective and they work together and for the attainment of their objectives, right? So the term organizations refers to a group of persons. This refers to a group of persons. Always remember, organization is what? Organization refers to a group of persons with common goals. With common goals. और इनका जो काम, उनकी जो सोच होती है, इनका जो लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? कॉमन होता है. कॉमन मतलब एक ही होता है. ये सब मिलते हैं एक साथ, एक ग्रुप बनाते हैं और ये एक तरह का ही काम करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं. राइट? द टोटल वर्क इज डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स. Right? Work is divided among the work is divided among the members. ये जो काम इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होंगे वो मेंबर्स के बीच में क्या कर दिए जाएंगे? बांट दिए जाएंगे. राइट? नाउ इन सब के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इन सब का कोई ऑर्डर देने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी. राइट? सो देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी. There is what? A central authority which prescribes rules and regulations. Right? They have a central authority. Central मतलब बीच में बैठी हुई एक सेंटर में. Central authority to prescribe rules and regulations. Rules and regulations. तो यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो कि इस ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस को सेट करती है. एवरीबडी हैज टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशन. अकॉर्डिंग टू जेम्स डी मूनी, organization is a form of every human association for attainment of common purpose. Right? So इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ लोग वॉलंटरली आते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप एंड दे वांट टू वर्क टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. दे हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव. Right? The work is divided among the people, the work is divided among the workers, and there is a central authority who decides upon the rules and regulations of the organization. Right? Now this organization has what? This organization has a type of relationship among the members. There are two types of relationship. Right? यहाँ पे relationship जो होता है among members is of two type. या तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होगा या तो वर्टिकल रिलेशनशिप होगा. हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, सी I told you that organization क्या group of people है, they all come together, they form a group and they have a common objective and the work is divided among them and there is a central authority जो सारे rules और regulations को क्या करती है? डिसाइड करती है. राइट? जब रिलेशनशिप की बात आती है कि इन सबका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, तो रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में. या तो हॉरिजॉन्टल होते हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होते हैं? इस प्रकार के, जब सेम लेवल पे सारे लोग काम कर रहे हैं. ठीक है? और वर्टिकल क्या होता है? ये ऐसा रिलेशनशिप. राइट? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में हर आदमी क्या है? सेम काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या है? एक हॉरिजॉन्टल जगह पे है. राइट?
ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। यहाँ पे सबके पास क्या है, एक ही पावर्स है। Whereas यहाँ पे क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। इस केस में क्या है, यहाँ पे अगर एक मेंबर मैनेजर है तो दूसरा भी मैनेजर है, तो तीसरा भी मैनेजर है, तो चौथा भी मैनेजर है, तो यहाँ पे क्या है, सबके सब क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यहाँ पे सबके सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। वर्टिकल रिलेशनशिप रेफर्स टू सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये क्या होता है आपका, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा ऑफिसर यहाँ हो गया, यहाँ पे आपका बॉस होगा, उसके नीचे फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर हो गया, उसके नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया। यहाँ पे वर्टिकल मतलब पहले सबसे बड़ा ऑफिसर, उसके बाद उसके नीचे वाला ऑफिसर, फिर सबसे नीचे वाला ऑफिसर, फिर सबसे नीचे वाला। यहाँ पे क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा, रैंक के हिसाब से होगा, सबसे बड़ा फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, इस तरह से होगा। बल्कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में सब लोग क्या होते हैं, एक ही रैंक के होते हैं, एक ही काम कर रहे होते हैं, राइट। alright, so vertical relationship from the top to bottom of the organization constitute the chain of command through which authority, responsibility and communication flows both downward and upward. So ये जो है आपका vertical relationship जो होता है, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, top to bottom of the organization, या हम बोल सकते हैं vertical relationship from the top to bottom, from the टॉप टू बॉटम। जो वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, ये वाला वर्टिकल रिलेशनशिप, ये टॉप टू बॉटम होता है, राइट, टॉप टू बॉटम होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, कमांड्स या ऑर्डर्स क्या किए जाते हैं, पास ऑन किए जाते हैं। ये एक तरह की चेन होती है, बड़ा बॉस जो बोलेगा उसके नीचे जो जूनियर ऑफिसर होगा उसे काम करना पड़ेगा, उसके नीचे फिर इसके नीचे। बल्कि हॉरिजॉन्टल में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब क्या होते हैं, इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक ही रैंक वाले लोग होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगेन आई विल टेल यू, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद कॉमन गोल। ग्रुप ऑफ पर्सन होता है ये, ठीक है। या अगर पॉइंट्स में हम इसको रिपीट करें, खास बात है इसकी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कॉमन गोल, एक ही काम करना चाहते हैं, ये कॉमन गोल है इन लोगों का। एंड वर्क इज डिवाइडेड, वर्क इज डिवाइडेड, वर्क को बराबर यहाँ पे काम को बांट दिया जाता है, राइट। एंड सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होगी, बीच में बैठी हुई एक पावर होगी जो क्या बनाएगी, रूल्स बनाएगी। यहाँ पे रिलेशनशिप जो मेंबर्स के बीच में है, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा या क्या होगा, वर्टिकल रिलेशनशिप होगा। An organization, finally, an organization is a group of deliberate form or designed to achieve specific goal. The activities of an organization are coordinated rationally through assignment of duties. So जो भी काम यहाँ पे किया जाता है वो क्या होता है, आप क्या करते हो, ड्यूटीज असाइन कर देते हो। You give duties are assigned, ASSIGNED, duties are assigned to all the members, right। जो जिस काम के लिए बनाया है वो काम करता है, alright। So this is what your organization. This is organization. Now we have understood what is an organization. Now we are going to do that what is a firm. Alright, or we can say what is a company भी कर सकते हैं। What's a company? अब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी क्या होती है? The term company means an association of many persons who contribute money or money's worth. ठीक है, this is also a group of people, association of people who contribute what?
ये मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी जमा करते हैं टू कॉमन स्टॉक फॉर सम कॉमन पर्पस, टू कॉमन स्टॉक फॉर सम कॉमन purpose. Now, what is company? Company is an association of people who contribute money or to a common stock, right, for common purpose. The common stock also contributed is denoted in money is called capital. जो ये common stock होता है ये क्या होता है आपका? ये कैपिटल कहलाता है. क्या कहलाता है? कैपिटल. अब आप बोलोगे कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो सारी चीजें होती है जिससे आप बिजनेस को क्या करते हो, स्टार्ट करते हो. तो स्टार्टअप जो आपका होता है, जो आपका शुरुआत में जो पैसा मशीन लगती है उसको हम कैपिटल कहते हैं. तो एक कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ मिलते हैं, दे कलेक्ट मनी एंड जिसको हम कैपिटल कहते हैं, उस स्टॉक कहते हैं और उसको कैपिटल भी कहते हैं, और उससे बिजनेस को स्टार्ट या कंपनी को स्टार्ट किया जाता है. राइट. द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज शेयर इंटाइटल इज हिज शेयर. तो हर आदमी ने जो कैपिटल दिया है या जो मनी दिया है वो क्या हो जाता है, शेयर. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं. ईच पर्सन्स कंट्रीब्यूशन, हर पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं. राइट. ईच पर्सन कंट्रीब्यूशन आर शेयर. शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल. और शेयर्स क्या है, ट्रांसफरेबल होते हैं. नाउ कंपनी इज अ लीगल टर्म बिकॉज it is created by law. Another important thing is company is created by law. कंपनी को जो शुरू करने वाला होता है या क्रिएट करने वाला होता है वो क्या होता है, लॉ होता है, कानून होता है. इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटाइटी. इसकी खुद की एक पहचान होती है. इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटाइटी. राइट. कंपनी है सेपरेट लीगल एंटाइटी. लीगल मतलब कानूनी. इसकी खुद की कानूनी पहचान होती है क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, किसने क्रिएट किया है, लॉ ने इसे क्रिएट किया है, कानून ने इसे क्रिएट किया है. राइट. अ कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. राइट. सो ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होगा, मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बताया. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट कंपनी. तो कंपनी के बारे में खास बातें क्या है, कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयड फॉर सम कॉमन पर्पस. द कॉमन स्टॉक आई टोल्ड यू, दिस कॉमन स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल. नाउ हर पर्सन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी नोन एज शेयर. एंड कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी हैज लीगल एंटाइटी. उसकी खुद की पहचान होती है कंपनी की. एंड कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. राइट. सो दिस इज व्हाट नोन एज कंपनी. नाउ वी रीड अबाउट फर्म. नाउ वी रीड अबाउट व्हाट, फर्म क्या होती है. फर्म क्या होती है, फर्म आपका प्रॉफिट के लिए काम करती है. राइट. नाउ फर्म इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन. फर्म क्या होती है, एन इंडिविजुअल होती है और अ ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकती है. मतलब एक सिंगल व्यक्ति की भी कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल की भी फर्म हो सकती है. एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज फर्म. सो who carry on some business, who carry on some business. ये कुछ किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं. एक सिंगल आदमी भी फर्म बना सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी फर्म बना सकते हैं जो कि क्या कहते हैं, बिजनेस करते हैं. राइट. नाउ अ फर्म कैन बी सोल प्रोप्राइटर. फर्म कैन बी सोल प्रोप्राइटर सिंगल आदमी का हो सकता है या पार्टनरशिप हो सकती है कंपनी. Proprietorship is owned and controlled by a single person. Two or more person can own, control partnership. Right? Partnership are non-legal entities. Now it's very simple that firm क्या होती है. firm अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करके इसको बहुत सिंपल रखेंगे. firm एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है या बिजनेस करता है, या एक सिंपल एक अकेला व्यक्ति भी क्या हो सकता है, फर्म स्टार्ट कर सकता है. फर्म या तो पार्टनरशिप हो सकती है
मतलब पार्टनरशिप मतलब कुछ पार्टनर्स जब फिर खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर वो सिंगल व्यक्ति होता है जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि एक सिंगल शॉपकीपर, या एक सिंगल कोई व्यक्ति जो आपका टेलरिंग की शॉप कर रहा हो, या उसमें सैलून चला रहा हो, या ब्यूटी पार्लर चला रही हो कोई लेडी। तो जो सिंगल व्यक्ति अपने बिजनेस करते हैं वो भी एक फॉर्म करते हैं, और अगर कुछ पार्टनर्स मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और वो कुछ सिंगल आदमी ना होकर के वो 4-5 लोग हैं जिसे पार्टनरशिप कहते हैं, तो वो भी एक फॉर्म कहला सकती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्म्स वर्क फॉर प्रॉफिट only. Right, now we can see that there are certain differences also given to you on the summary. Now we'll do distinction by preparing a table. Now we'll prepare a table. This is last. Now organization, firm and company. We'll read the difference between organization, firm and कंपनी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ये आपका बेस है। राइट चिल्ड्रन, तो फर्स्ट बेस इज मीनिंग। फर्स्ट बेस क्या है आपका? मीनिंग। मीनिंग क्या है? सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ